चलिए let's start, and today we are going to start this which is data validation, right? Very important data validation. And data validation जैसे हमने data conditional formatting use किया था, similarly data validation is something like that, but that is not related to formatting. Data validation is basically used when we have to validate the data or restrict the data so that unwanted data is not basically entered, right? Let's suppose please use or please enter greater than 18. So if I'm going to enter 16, so 16 is not accepted, वो accept नहीं होगा. Let us see. So data validation में काफी सारा options है. We are going to work on the drop downs and everything related to that. Let us see. मैं एक बार फाइल को ओपन करता हूं. Suppose in this one I wanted to restrict so that greater than 18 should be entered. 18 or greater than 18. Less than 18 is not accepted. Chaliye. So I'll go with this data. I'll go with this validation, this one, data validation. And the shortcut is Alt DL. Alt DL is the shortcut. Alt DL is the shortcut. Let us see. Alt DL, one after another. Now this is showing data validation window. Under this is showing any value, whole number, decimal. So I can go with this whole number and it's asking not equals to, so I can greater than. जो आपके conditional formatting में था, similar कुछ है. Greater than, or we can use greater than or equals to 18. Click OK. Now, whenever I'm going to write 12, so it will say the value does not match the data validation restriction. Cancel. अब मैं करता हूँ 18, then 18 will be accepted, but 13 will not be accepted. Now what I can do, I can change the message. This message is basically not a user-friendly message. ये basically generic सा message है. Now एक professional सा message आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा. Let us see. So I'll go with this data validation. Now we will go with this error alert. Under error alert, we can see invalid input. I can write invalid input. Please enter greater than or now let us see 12. So it's showing invalid input. Please enter greater than or equals to 18. Greater than or equals to 18. ठीक है ना? ये मैसेज दिख रहा है. Clear? This is clear? The first one? Clear sir. अगर मुझे इसको रिपीट करना है कहीं पर और, मतलब यही सेम वैलिडेशन को मुझे अगर मल्टीपल जगह पे लेके जाना है, सो कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? सेम वैलिडेशन को मल्टीपल जगह पे लेके जाना है तो कैसे करेंगे? सर पेज स्पेशल. Yes, Control C, and I can go with this paste special and validation. Click OK. Now this is data validation which is applied. अगर मैं यहाँ पर 12 करूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर 13 करूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा. So I have applied this validation to multiple places. अब आप बताओ कि how to check whether कहाँ पर validation. अभी देखिए पता नहीं चल रहा है कहाँ validation लगा हुआ है, देख के नहीं पता चल रहा है. So how can we check where validation is applied? इस जगह पे validation applied है वो कैसे पता चलेगा? How can we detect? How can we check? सर same as page special with the format painter. नहीं, हमें पता करना है कहाँ है. So what I'll do? Control G, special data validation. Click OK. So these are the cells where data validation is applied. Control G, then special. Right. Clear? How to basically create data validation and how to apply that data validation and how to check the data validation कि कहाँ पर लगा हुआ है. These three
ऑप्शंस आर क्लियर, सिनेरियोस क्लियर है? Yes, sir. Clear. ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि आई वांटेड टू चेंज द सेटिंग्स। अभी मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 किया है ना। इफ आई वांटेड टू चेंज द सेटिंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, अब मुझे नहीं पता है ना कि कहां कहां ये सेम वैलिडेशन लगा हुआ है। सो आई वांटेड टू चेंज द वैलिडेशन ईच एंड एवरी प्लेस वेयर दिस वैलिडेशन इज अप्लाइड, उस जगह पे करना है। तो देखिए क्या करना है, ऑल्ट डी एल, आई विल गो विद द सेटिंग्स, आई विल मार्क ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, यहां पर कर देता हूं एरर अलर्ट, यहां पर भी चेंज कर देता हूं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, in the first step, apply these changes to all other cells with the same setting. So I'll check this one कि जहां जहां पर ये वैलिडेशन लगा हुआ है उसको हर जगह पे चेंजेस कर दीजिए। So I'll apply this, click OK, done. Now let's mark it 12. Please enter greater than equals to 16. ठीक है, तो मैं एक बार 16 यूज करता हूं। So now this is accepted. This is clear how to change the validation. Everybody clear है? Clear, sir. Clear. ठीक है। अब देखिए अभी तक जो हमने वैलिडेशन यूज किया है ना, that is only when there is we enter the data. When we enter the data, then in that case we can just use that validation. But उस केस में क्या होगा जहां पर ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है, if we already have the data and we are going to apply the data validation. Let us take an example. अब मैं यहां पर करता हूं एक रैंडम वैल्यू इनपुट कर देता हूं, रैंड बिटवीन 10 to 50. Now let us apply the data validation। यहां पर data validation को अप्लाई करते हैं, this same validation, select space spatial and then validation। अब देखिए क्या होगा, validation लग तो गया है but this is 14, if so this will not affect to the existing data। if I'm going to enter and change the data, उस केस में ये आपको बताएगा कि क्या आपका कहां कहां एरर, मतलब यहाँ पर वैलिडेशन आपका गलत है, डेटा गलत है। इन दैट केस वी कैन चेंज द डेटा, बट ऑलरेडी इफ देयर इज अ डेटा एंड इफ आई डोंट वांटेड टू चेंज, तो फिर वो वैसे ही गलत डेटा पड़ा रहेगा। सो डेटा वैलिडेशन इज इफेक्टिव व्हेन वी एंटर द डेटा, राइट। अगर एग्जिस्टिंग डेटा है तो वहां डेटा वैलिडेशन उस तरह से इफेक्ट नहीं आएगा, बट what we can do, we can highlight the unwanted data, highlight the invalid data, highlight the wrong data। कैसे? Let us see। So what I'll do, I'll go with this data tab। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के बगल में एक ड्रॉप डाउन है, एरो, इट्स शोइंग सर्कल इनवैलिड डेटा, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। देखा आपने, बता दिया ना, दीज आर द इनवैलिड डेटा विच इज देयर इन द शीट। और इस शीट पे जहां जहां भी इनवैलिड डेटा होगा इट विल हाईलाइट दोस शीट्स, दोस सेल्स। इट मींस ये ड्रॉबैक है इसका ना, डेटा वैलिडेशन का कि नहीं, ड्रॉबैक ठीक नहीं बोलूंगा। देखिए क्या है, डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर इसको ठीक टर्म से हम लोग अगर समझे तो डेटा वैलिडेशन का मतलब या तो डेटा को वैलिडेट करे या तो गलत डेटा को बताए, दोनों वे से कर सकते हैं। अगर मैं एंट्री करूंगा तो मुझे डेटा को गलत बताएगा, और अगर मैं एंट्री नहीं करता हूं तो एग्जिस्टिंग डेटा कहां कहां गलत है वो भी वे आउट है। सो दोनों वे से हम चेक कर सकते हैं, इन एंड आउट दोनों वे से, राइट। ओके सर। नाउ अगर मैं यहां पर हटाता हूं, लेट अस 14 की जगह मैं कर देता हूं 21, सो ऑटोमेटिकली देख रहे हो एरो हट जा रहा है। अगर मैं 12 की जगह कर देता हूं 19, ऑटोमेटिकली एरो हट जा रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि किस किस जगह पे आपका एरर था, अब ठीक है। मैं किसी भी टाइम में आई कैन गो टू क्लियर वैलिडेशन सर्कल, सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। ये स्क्रीनशॉट में बहुत अच्छा काम आता है कि आपने अपने स्क्रीनशॉट दे दिया कि दिस आर द इनवैलिड डेटा, राइट। सर्कल वैलिडेशन सर्कल। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब हमने एक स्ट्रक्चर को समझ लिया, these are the things that we have understand that how to create data validation, we have understood this one। ये पहला, सॉरी, data validation, edit data validation, apply data validation to multiple place, customize error alert। ये देख लिया।
circle invalid data. These are the few terms जो हमने देखे. Now let us see how to delete data validation. Delete कैसे करेंगे? Now if I wanted to delete the data validation from specific cells या specific condition की ये condition जहां जहां है वहां से delete हो जाए, yes पूरे sheet से delete हो जाए. There are multiple scenarios. अब देखिए मैंने यहाँ पर cursor रखा है. I'll go with this data validation. It's showing यहाँ पर any value कर देंगे या clear all कर देंगे. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक काम करते हैं Alt DL. It's showing clear all, but clear all करने से पहले अगर मुझे सिर्फ इस पे clear करना है, if I wanted to clear only this cell, then I can go with clear all. If I wanted to clear from the range where this validation is applied, I'll select this and clear all. और अगर मुझे सबसे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, पूरे सीट को सिलेक्ट कर दूंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, यस में जाऊंगा और यहाँ पर क्लियर ऑल कर दूंगा. सो इट विल रिमूव द एंटायर डेटा वैलिडेशन. सो क्लियर करने का मतलब हो गया इट विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दैट. डेटा वैलिडेशन रिमूव हो जाएगा. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल. अब आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन फ्रॉम डेटा वैलिडेशन. आई वांटेड टू अप्लाई द डेटा वैलिडेशन इन दिस सेल इन सच ए वे दैट ओनली 4 कैरेक्टर्स इंसर्ट हो सकता है. 4 कैरेक्टर्स, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो 1 2 3 4 हो, चाहे वो अल्फा न्यूक्लिक हो, एनीथिंग, बट इट शुड बी 4 कैरेक्टर्स. बताइए Alt DL. Now what could be the option? 4 characters. It's a custom. Custom जा सकते बट देर इज टेक्स्ट लेंथ. आप देख लो टेक्स्ट लेंथ का किया हुआ है ऑटोमेटिकली. देर इज एन ऑप्शन फॉर टेक्स्ट लेंथ. So I can use this option. Let us see. एक बार देखते हैं. So I'll go with this equals to और कर दूंगा 4. Done. खत्म. Now ABCD हो जाएगा 1 2 3 4. It will work. AB1 2 it will work, but ABC काम नहीं करेगा because this is 3 characters. So this is how we can use 4 characters. ये clear है? Yes sir. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. आई वांटेड कि यहां पर नंबर्स इंटर हो, ओनली नंबर्स. इट कुड बी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, डेसिमल, होल नंबर, कुछ भी, ओनली नंबर्स. बताइए. सी इन केस ऑफ होल नंबर डेसिमल काम नहीं करेगा. डेसिमल के केस में होल नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा. आई वांटेड बोथ डेसिमल एंड होल नंबर बोथ. So we can use any value. एनी वैल्यू का मतलब तो हो गया उसमें कुछ भी इंटर हो जाए जो बाय डिफॉल्ट होता है, नंबर, टेक्स्ट, कुछ भी, एनीथिंग. So from custom. Yes, from we have to go through custom only. और कस्टम का मतलब फिर से फॉर्मूला वाला स्टेज आ गया. तो फॉर्मूला छोड़ना नहीं है पीछा, फॉर्मूला हर जगह रहेगा आपके साथ. अब आप बताओ कौन सा ऐसा फॉर्मूला देखा है, फंक्शन देखा है जो नंबर को चेक करता है कि ये नंबर है कि नहीं. एनी फॉर्मूला. Counting. बताइए which functions check whether this cell is a number or not. Is number, yes. So equals to is number. So cursor पहले आपका यहाँ होना चाहिए. Then I'll go with this one is number. Bracket close. Click OK. Done. Let us see. 12 accepting. 12.34 accepting. -4 accepting. -4.56 accepting. 0 आ रहा है but AB नहीं ले रहा है. So this is a text. AB1 2 नहीं लेगा. This is alphanumeric. So only number is accepted. Clear है? इस तरह से आप formulas को use कर सकते. Yes sir. चलिए. Now अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज में which is majorly used. सबसे ज्यादा वो यूज होता है which is drop down list. ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना है एंड विच इज मैक्सिमम यही यूज होता है डेटा वैलिडेशन में. लेट अस सी, एक बार समझते हैं. Now suppose in this one I have a list of employees A, B, C, D, E. These are the team members. Now in this one I have to create a drop down कि लोग इसी में से कोई एक डेटा सिलेक्ट कर पाए. So Alt DL, I'll go with this list. Source is this one.
एंड इट दिस सोर्स कुड बी इनटू एनी शीट, किसी भी शीट से हम ले सकते हैं, राइट। बट अभी फिलहाल मैंने यहां से ले लिया, और उस शीट को अगर हाइड भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल बी गेटिंग द लिस्ट। तो ये मुझे लिस्ट मिल गया। देखिए मैं इसी में से कोई एक डेटा सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं कोई और एक्स्ट्रा डेटा सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आई कैन ओनली सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम दिस लिस्ट। सो कैसे किया, आई एम गोइंग टू दिस लिस्ट, और लिस्ट में जाके सोर्स को सिलेक्ट कर दिया, सिंपल। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने नेम मैनेजर पढ़ा होगा, नेम मैनेजर, राइट, याद है नेम मैनेजर? नाउ इफ आई एम गिविंग इट ए नेम टू दिस रेंज, अगर इस रेंज को मैं नाम देता हूं, लेट अस से मैंने यहां पर नाम दे दिया है टीम। Now what I can do, I can use this one also, Alt DL list equals to team भी कर सकता हूं। तो ये ऐसे काम करेगा, ABCDE, ये ऐसे काम करेगा ABCD। सो दो वे आउट देखा है। तीसरा वे आउट क्या है पता है, कि इफ आई डोंट हैव एनी लिस्ट, अगर मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, जैसे एग्जांपल लेते हैं यस नो NA, गुड बेटर, इस तरह से कुछ करना है, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द क्रिएट अ रेंज, उसको रेंज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर जाके लिख सकते हो। आई कैन गो टू लिस्ट, आई कैन यूज यस कॉमा नो कॉमा NA, कॉमा करके कर सकते हैं। सो इट विल शो एज अ ड्रॉप डाउन यस नो NA। सो देयर आर थ्री वे आउट, आइदर वी कैन सिलेक्ट द लिस्ट डायरेक्टली, और आई कैन क्रिएट ए नेम्स, और नेम्स को यूज कर सकते हैं। थर्ड इज द डायरेक्टली राइटिंग the items into this source. These are the three methods. Clear है ये तीनों? Yes sir. अब आते हैं इसका नेक्स्ट लेवल। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं, डेटा वैलिडेशन। Now let us suppose we have two departments. One is HR and another is QA. Under HR we have A, B, C and D, and under QA we have E and F. Now the scenario is that we have wanted to create two drop down. First drop down में मैं बोलता हूं कि आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। सो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर दिया मैंने, लिस्ट में जाके दिस इज द डिपार्टमेंट, मैं हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट कर सकता है, इट विल वर्क। सो दिस इज HR and QA. Now the question is, if I am going to select this HR, तो यहाँ पर मैं एक और ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूं। I wanted to create another drop down in this one where the name of HR should come. HR के अंदर में ABCD है, तो in that drop down ABCD दिखना चाहिए, and the moment I change from HR to QA तो वो दिखना चाहिए EF। तो डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, I wanted to create a dependent drop down। so देखते हैं, देखिए कैसे होगा। so जैसे मैंने यहाँ पर HR सिलेक्ट किया, लेट अस सी यहाँ पर क्या है, लिस्ट equals to if this equals to HR, डबल कोट्स में if का लगा दिया, if this equals to HR then ये रेंज, सिंपल, पहला खत्म। फिर कॉमा if this equals to QA then this range, ब्रैकेट क्लोज, दो ब्रैकेट ओपन हुआ तो दो ब्रैकेट क्लोज होगा, बस। सो दिस इज HR, so this is showing ABCD, this is showing QA, so this is showing EF। देखा आपने, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। आई एम गोइंग टू शो यू द फॉर्मूला अगेन। This is the formula. Yeah. कि if this equals to HR तो this range, if this equals to QA then this range, तो दो ब्रैकेट बंद हो जाए। क्लियर है ये चीज, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन? Yes sir.
एंड वी कैन यूज मल्टीपल फॉर्मुलाज। यहाँ पर मल्टीपल एचआर और क्यूए के लिए ऐसे मैं 64 कंडीशंस लिख सकता हूँ, बट उसको मैं बताऊंगा और एडवांस लेवल पे कैसे करना है ना। एक यहाँ पर गलत पता है, एक चैलेंजेस आएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एचआर सिलेक्ट किया एंड एचआर में इट्स शोइंग एबीसीडी, मैंने बी किया हुआ लेट से। नाउ इफ आई एम गोइंग टू चेंज दिस फ्रॉम एचआर टू क्यूए, अब देखिए क्यूए में बी नहीं है बट बी ऑलरेडी सिलेक्टेड था तो हटा भी नहीं, इट्स नॉट रिमूव। सो गलत हो सकता है डेटा, राइट। कहीं पर अगर रिपोर्टिंग करना है तो दिस इज द रॉन्ग पिक्चर। अगर मैं इसको हटाऊंगा देन आई कैन राइट सिलेक्ट एनीथिंग, बट अब मैंने एफ कर लिया है। इफ आई एम गोइंग टू गो टू एचआर तो एचआर में एफ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। नाउ टू टेक केयर ऑफ दिस वन व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द स्मॉल वीबीए कोड। तो मैं आपको वीबीए का कोड दिखाता हूँ, हालांकि आप जब वीबीए करोगे तो आपको डिटेल्स में समझ में आएगा, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ लेट अस सी, इसको हम वीबीए में डिटेल्स में समझेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि वीबीए से हम इनको टेक केयर कर सकते हैं। बहुत छोटा सा कोड है। इफ टारगेट डॉट एड्रेस इक्वल्स टू, ये क्या है, F5, देन रेंज, कौन सा रेंज में, दिस इज F7, F7 डॉट क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कंटेंट कर दो। और एक चीज है, रेंज F7 को सिलेक्ट भी कर ले। अब देखिए क्या होगा, इजी होगा ये करने में। कैसा इजी होगा देखिए, बहुत इजी वे में आप समझ सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एचआर किया तो कर्सर भी यहाँ मूव हो गया, देख रहे हो, ये यूजर फ्रेंडली कोड हो गया। ना इफ आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू बी, ना इफ आई एम गोइंग टू चेंज फ्रॉम एचआर टू क्यूए, तो ये क्लियर भी हो गया और कर्सर भी मूव हो गया। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वीबीए which we are going to see later। अब आप तो इस तरह से आप छोटे छोटे कोड को बना सकते हैं, बट अभी एक्सेल से करेंगे तो वो चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। नाउ दिस वाज बेसिक, ये क्लियर है जो हमने एक्सेल से किया, दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। नाउ अब इसको एडवांस में देखते हैं। Let us add sales. Let us add finance. Let us add, let's say, analytics. Let us say admin. अब इतना हो गया, इसको हटाते फिलहाल अभी। सेल्स, GHIJKLMN OPQR STU VWXYZ। नाउ आई वांटेड टू क्रिएट ए डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। अब बताइए, लास्ट वाले में हमने क्या किया था, इफ यूज किया था। इट्स वी कैन यूज इफ ऑल्सो, वी हैव टू यूज 6 इफ, बट 6 इफ काफी कम्प्लेक्स हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज सम डायनेमिक मेथड। कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, लेट अस सी। दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट नेम ऑल दिस एक्सक्लूडिंग हेडर, हेडर को नाम नहीं देना है। So I'll name it as HR। जो भी आपके हेडर में है ना उस वही नाम को देना है, बट हेडर इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेटा। दिस वन HR, दिस इज QA, दिस इज सेल्स, दिस इज फाइनेंस, दिस इज एनालिटिक्स, दिस इज एडमिन। Now I am going to create one drop down, first one which is the list, and this is my first drop down. Now the second drop down I wanted to create a dependent list। अब आप बताओ, अगर मैं करता हूं इक्वल्स टू HR तो क्या आएगा बताइए, इक्वल्स टू HR में क्या आएगा,
आई हैव क्रिएटेड द नेम, जैसे हमने इक्वल्स टू टीम किया था, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट इक्वल्स टू एचआर, तो क्या आएगा? ABCD. ABCD, राइट, ABCD, लेट अस सी, ABCD आ रहा, परफेक्ट। नाउ अगर मैं इसको लिखता नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट राइटिंग दिस एचआर, मैं डायरेक्ट इसको अगर सिलेक्ट कर दूंगा इक्वल्स टू एचआर, तो क्या आएगा बताइए? व्हाट विल कम? ABCD है। ABCD, यस, नहीं, ये आ गया एचआर। क्यों? मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज ये जो था इक्वल्स टू एचआर, ये एचआर को हमने एज ए रेंज यूज किया, दिस एचआर इज ए रेंज, बट अगर मैं ऐसे इक्वल्स टू सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये एचआर एज ए टेक्स्ट यूज हो रहा है, रेंज की तरह यूज नहीं हो रहा है, दिस इज यूज्ड एज ए टेक्स्ट। ना कौन सा फंक्शन है विच कन्वर्ट से टेक्स्ट टू ए रेफरेंस, टेक्स्ट टू ए रेंज, कौन सा फंक्शन टेक्स्ट को रेंज में कन्वर्ट करता है? Indirect. Index. यस, इनडायरेक्ट। अब देखिए क्या करना है, आई वांटेड टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट टू ए रेंज, सो इनडायरेक्ट के अंदर ये डाल दूंगा बस, और कुछ नहीं करना है, कोई भी इफ यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ एचआर, दिस इज कमिंग एबीसीडी, नाउ लेट अस गो विद दिस क्यूए, this is coming as EF, now let us go with this sales, it is coming as GHIJKLMNM, देख रहे हो आप? now let us change sales से अब कर देता हूँ finance, so automatically finance के लोग आएंगे। अब मैं कर देता हूँ analytics, it will show the data for analytics department, and finally अगर मैं यहाँ पर admin करता हूँ, so it will show the data for admin, so this is, हालांकि ये एडवांस है बट बहुत बेसिक तरीके से पूछ गया है। so this one equals to indirect and I'll select this name, but ध्यान रखना है कि आपको नेम क्रिएट करना पहले, this is the mandatory step, you have to create the name first, so this is dependent drop down advanced level, this is advanced, so we are here into the very important phase। as of now हमने क्या किया था, we have been done into the hard work, अभी तक हमारा हार्ड वर्क था, जहां पर formulas we have to write, we have to do lots of things। now we are going to move into the smart work, which is the data analytics part in Excel। from the next class onwards we are going to move into the data analytics part, जहां पर हम graphs देखेंगे, we are going to see pivot table, dashboard, lots of things are there which we are going to cover, and this is one of the turning point of Excel। इस जगह से आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा, जो आपको एनालिटिक्स यूज में, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं या डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, और यू वांटेड टू क्रिएट डायनेमिक डैशबोर्ड, देन द अपकमिंग क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्लास मिस कर दिया है देन दिस इज योर लॉस, सिंपल, ये लॉस हो जाएगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट।